માછીમારો પાકિસ્તાનની અંદર જે 198 પકડાયેલા છે એ લગભગ 2021 થી કન્ટિન્યુ ત્યાં છે. એટલે ઓલમોસ્ટ ઘણા બધા લોકો એવા છે કે જેમના 5 વર્ષ કે 5 વર્ષથી પણ વધુ સજાનો સમય થઈ ગયો છે. અને જે પાકિસ્તાનના જે અહીંયા 53 જેટલા માછીમારો છે કે જે આપણી જેલમાં છે. તો જ્યારે આપણે 14મી ઓગસ્ટ પાકિસ્તાન પોતાનો આઝાદીનો દિવસ મનાવશે અને 15 ઓગસ્ટના દિવસે આપણે આઝાદીનો દિવસ મનાવીએ છીએ, ત્યારે અમે બંને સરકારોને કહીએ છીએ, આજે એક જોઈન્ટ લેટર પણ બંને પ્રધાનમંત્રીને લખ્યો છે કે જ્યારે બંને દેશ આઝાદી મનાવી રહ્યા છે ત્યારે જે પાકિસ્તાનના માછીમારો ભારતના જેલમાં છે અને ભારતના માછીમારો જે પાકિસ્તાની જેલમાં છે એમના પરિવારોને પણ આઝાદીનો અહેસાસ થાય એ માટે 15 ઓગસ્ટના દિવસે આ લોકોને રિલીઝ કરવામાં આવે. મારા હસબન્ડ ડેથ થાય આજ 12 વર્ષ થયા અને મારા ડિયર પકડાયેલ છે એને 5 વર્ષ થવા આવ્યા અને મારા સાસુ છે એ બીમાર, મારા જે પકડાયેલા હતા ત્યાંના બીમાર હતા અને દવા માટે બમ લઈ જતા હતા. અમારી પાસે એટલા પૈસા હતા ને કે અમારા સાસુને અમે આગળ સારવાર કરાવી. હમણાં હાલમાં 2 મહિના પહેલા જ મારા સાસુ ઓળખેલા છે. મારી એક છોકરી છે, મારા હસબન્ડ પણ મારા સસરા બીમાર છે. તો અમારા ભારત સરકારને એક જ પ્રાર્થના છે કે અમારા માસીમા ભાઈ નિર્દોષ છે એને છોડાવવા માટે પ્રયત્ન કરે અને છોડાવીને લાવીએ. અમે ભારત સરકારને એટલી વિનંતી કરીએ કે અમે એટલી મીટિંગો કરીએ, એટલી રિક્વેસ્ટ કરીએ, પણ અમારા પાકિસ્તાનવાળા ભાઈઓની કોઈ આગળ વાત જાતી નથી. આજ 5-5, 6-6 વર્ષથી એની જે મીટિંગ કરતા હોય ને અમારી વાત સ્વીકારતા હોય નહીં, તો અમે ગરીબ માણસો કામ ખાઈને કામ લેવા દઈએ. અમારા બસના કામે તો અમે ખાઈએ, અમારા બસાની પઢાઈ થતી નથી, અમારાથી કોઈ મજૂરી થતી નથી. અમારા દીકરા મસ્તી મારવા ગયા હતા, કોઈ ગેરકાનૂન કરવા ગયા નહીં, કોઈ દાનછોડી બી કરવા ગયા નહીં. એની મુદત પૂરી થઈ ગઈ, એની સજા પૂરી થઈ ગઈ હોય તો એને છોડાવીને અમારા વતન મોકલાવો. અમારા બસાને અમને બહુ જરૂર છે. મારો દીકરો બી ના બીમાર હતો તો અમને ખબર નથી, મારો વર બી વોક થઈ ગયો એ બી મારા દીકરાને ખબર નથી. અમે અમારા બસ્સા વગરના બહુ પરેશાન છે. અમારા બસ્સાને છોડાવીને ભારત સરકારને કે અમારા વતન મોકલાવો. અત્યારે રક્ષાબંધન આવતી હોય તો અમારી દીકરી વાત છૂટતી હોય, તહેવાર આવતા હોય તો અમે માવું બી વાત છૂટતી હોય. આજ 5-5 વર્ષ થઈ ગયા અમારા બસ્સાના અમે મોકલી જોયા નથી. તો અમારા ભારત સરકારને અમે વિનંતી કરીએ કે અમારા બસ્સાને છોડાવીને અમારા વતન મોકલાવો. અમે મીટિંગો કરીએ, અમારી સાથે એટલા માણસો આવે, અમારી સાથે દુઃખી થાય, પરસોત્તમભાઈ આવે, સતીનભાઈ આવે, હરેક માણસો અમારી સાથે આવે, અમારી સાથે બહુ રખે, બહુ મહેનત કરે છે. અમે ક્યાં જઈએ અડધો મારા, અમે મજૂરી અમારા ક્યાં જઈને અમે વાત કરીએ, એટલા માણસો અમને સાથ દે. અમે સરકારને વિનંતી કરીએ અમારા માણસોને છોડાવીને અમારા વતન મોકલવાનું. मेरा नाम उस्मान गनी है और मैं जो नेशनल फिशर फोरम है उसका वाइस चेयरपर्सन हूँ और जो गुजरात का समस्त माछीमार समाज है संगठन है उसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। पत्रकार परिषद थी, क्या पत्रकार परिषद है और कितने लोग पाकिस्तान से, यहाँ पर मामला पूरा क्या है? मामला ये है कि जो भारत के मछुआरे हैं जो काफी फिशिंग के लिए सी में जाते हैं उसी टाइम पे पकड़े गए वैसे 198 यानी कि 198 मछुआरे हैं जो पाकिस्तान जेल में है और पाकिस्तान के 53 जो मछुआरे हैं वो अपनी जेल में है, तो उनको हम छुड़ाने की जो बात है उसके लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। कहाँ के मछुआरे हैं और कितने वक्त से वहाँ पर? गुजरात के जो मछुआरे भी है, बिहार से भी, आंध्र प्रदेश से, यूपी से अलग अलग है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मछुआरे हैं वो गुजरात के हैं। 170 के करीबन जितने मछुआरे हैं वो गुजरात के ही है और बाकी थोड़े 24 है वो दीव से है। तो उस तरह से देखा जाए तो 198 मछुआरे हैं। गुजरात से हमारे कितने मछुआरे हैं जो फिलहाल की फैमिली है? अभी जो फैमिली आई है वो तो 10-15 फैमिली है उनके लोग ही आए, लेकिन पूरे गुजरात में 174 मछुआरे ऐसे हैं कि जिसको पाकिस्तान जेल में है। सर हम क्या मतलब कोशिश कर रहे हैं, किस तरह का सरकार से या पाकिस्तान सरकार से बात कर रहे हैं? हम अपनी सरकार में जो विदेश मंत्री एस जयशंकर है उनको भी मिले थे, अपने जो नायब चीफ मिनिस्टर है हर्ष संघवी उनसे भी कल मिले हैं और अलग अलग जितने भी MLA और MP है उनको भी हम मिले हैं, उनको भी रिक्वेस्ट किया है कि इस तरह से मामला है तो आप छुड़ाने की कोशिश करिए। और साथ में हम जो पाकिस्तान का जो मछुआरों का एक संगठन है पाकिस्तान फिशर फोरम,
उनको भी हमने लेटर लिखा था, वो लोगों ने भी वहीं पे पाकिस्तान गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा है और पीएम को भी लेटर लिखा है कि ये भारत के जितने मछुआरे हैं उनको छोड़िए। और हमने भी एक लेटर लिखा है कि अपने मछुआरों को, जो पाकिस्तान के मछुआरे हमारे देश में है उनको भी छोड़िए, और पाकिस्तान के हमारे मछुआरे जो पाकिस्तान जेल में हैं, उनको भी हम छुड़ा के लाइए। जो हमारा एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट का हम पालन करें। जी बिल्कुल, क्योंकि जब तक ये देखा जाए तो ये राजनीतिक, देखो हम क्या करते हैं आज तक पाकिस्तान और इंडिया का दोनों में जब बात होती है तो कहते हैं कि आप 5 छोड़िए, हम 5 छोड़ रहे हैं। तो ये दोनों देशों में जब भी पॉलिटिकली बात होती है तो ये राजनीतिक सवाल ही है। आप देखिए, जब हम श्रीलंका में हमारे मछुआरे पकड़े जा रहे हैं तो तमिलनाडु विधानसभा बंद हो जाती है और उसी दिन श्रीलंका से अपने मछुआरे वापस आ जाते हैं। तो गुजरात के मछुआरे वापस क्यों ना आए? तो ये जब आप पॉलिटिकली प्रेशर नहीं बन रहा है दोनों देशों में, इसी वजह से ये 2021 से लेकर आज तक 198 मछुआरे फंसे हुए हैं 5 साल से ज्यादा। और अगर देखा जाए तो 1990 से ये मछुआरे पकड़े जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार, लेकिन आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि 1 साल से ज्यादा मछुआरे रहे हो पाकिस्तान जेल में, 1-1.5 साल में वापस वो छुट के आ जा रहे थे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि 5 साल से ज्यादा हो गए और मछुआरे छुट के वापस नहीं आए। जी बिल्कुल, ठीक है। जब लोगों को ये लगता है कि 1-1.5 साल में वापस आ जाएंगे, लेकिन नहीं आए, 2 साल हुए, 2.5 साल हुए, 3 साल हुए, उस तरह से लगातार उसको लग रहा है कि अब हमारे पास जेल में से हमें छूटने का कोई उसको रास्ता नहीं दिख रहा है। तो वो एक मानसिक तौर से वो थक जा रहा है मानसिक रूप से, और वो सुसाइड कर रहा है। अभी लास्टली एक सुसाइड हुआ। और हमारा सरकार से ये कहना है कि 2021 से 2026 तक 9 मछुआरे ऐसे जो वहीं पे डेथ हो गई, उसके बाद उसकी बॉडी को ला रहे हो, तो बॉडी को क्यों लाए आप जिंदा आदमी जो है उनको लाने की कोशिश करिए। मेरा नाम है गनी अहमद पलानी। कहाँ के वतनी हो? ये दुआ का आपका बेटा है, कितने वर्षों से वहाँ? बेटे का नाम है जावेद गनी पलानी था। क्या नाम है वहाँ? 5 साल हो गए। क्या थी पूरी घटना ये बताइए। हमारे कैसा वो बॉर्डर पे बोट पानी लेके जाता है, हमको समुद्र में पता नहीं चल रहा है, पानी लेके जाता है, इसी वजह से वो वहाँ की कोस्टल पकड़ लेती है। क्या अब किस तरह की आपकी मांग क्या रहेगी और क्या चाहते हो सरकार से? सरकार से ये चाहते हैं जल्द से इंडिया और गुजरात के जो मछली मारे उसको सबको छोड़ा दे। ना अभी हमारे तो कुछ आता ही नहीं है, कुछ ले तो कुछ नहीं आता। शादी हो गए, 2 लड़का 1 लड़की है। जाते क्या करे, हमारी मजबूरी सर क्या सरकार क्यों करे, उसको छोड़ा है तो बहुत बड़ी बात है ना। हम तो कुछ कर नहीं सकते, उसको छुड़ा नहीं सकते उधर से। उसके पहले जो माछी मार गुजरात के जो पकड़े जा रहे थे और 6 महीना 15 महीना के 2 साल 2.5 साल के अंदर छूट जाते थे। आज ये लोग को 6 साल ऊपर हो गए। जो 20 के अंदर 13 मई को ये बोट को पकड़ा हुआ था। तो इनमें से एक सोचने की बात है कि हम तो अभी तो सरकार से विनती कर रहे हैं कि आपको उसको छुड़ाना चाहिए। 2 साल पहले ऐसा हुआ कि अपना फिशरीज डिपार्टमेंट और पुलिस एजेंसी और सब वाघा बॉर्डर पर लेने के लिए गए, लिस्ट आ गया, तो किस कारण ये सरकार को मालूम ना हुआ कि भाई किस तरह से उसको नहीं आने दिया। आज पाकिस्तान सरकार से उनकी तालमेल होती कि मछुआरों के छुड़ाने की जो बात होती, तो जो एजेंसी लेने के लिए गए थे वहीं से क्वारंटाइन को बोल दिया था कि ये टाइम को थोड़ा इसमें आ जाएंगे, तो वहीं पे आए नहीं। तो उसकी गंभीरता सरकार ने अब तक સુધી हमको ऐसा नहीं पता है कि कुछ किसके कारण है और कौन से टिकट से वो लोग नहीं आए। तो हमारी खास करके विनती ऐसी है कि जो हमारी सरहद है वहीं पर मछली मारने के लिए नहीं जाते। होता ऐसा है कि कभी कभी पानी में करंट आता है और चले जाते हैं। तो ऐसा होना चाहिए कि जो 2 साल 8 महीना 10 महीने के अंदर जो छूट जाते थे, इस तरह से राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के मिलकर कि मछली मारों के लिए कोई ऐसी योजना करनी चाहिए। अभी हालांकि अभी वहाँ पे कोई मछली मारने का तो प्रतिबंध है ही, एजेंसी तरफ से पहुंचकर नहीं भी रहती है, मगर कारण वो ही होता है कि जो पानी का करंट आता है वो मालूम नहीं होता है। तो हम जो फिशरमैन है और नेट के फिशरमैन है,
हम हॉल के फिशरमैन नहीं है कि जहीं पे हम चलेंगे वहीं चलेंगे, पूरा हमारा नेट छोड़ देंगे तो 10 कैरेट भी 10 माइल भी जाली चलेगा और 12 माइल भी चलेगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है, मगर मालूम होता है तो 6-7 माइल तो चलता है, क्योंकि 12-15 चलता है, उसके हिसाब से माछीमार इसमें आ जाते हैं। तो सरकार से हमारी विनती है और मांग है कि गुजरात के जो माछीमार है, सौराष्ट्र के जो माछीमार है, के महाराष्ट्र के, उनको सबको छोड़ना चाहिए। आज 6 साल ऊपर हो चुके, आज इनके घर की क्या पोजीशन होगी, इनके बच्चों की क्या होगी। जब ये लड़का पकड़ा, जब ये गिरफ्तार हुआ पाकिस्तान में, तब इनके लड़के की 5-6 साल की उम्र थी। आज अभी 11-12 साल के हो गए। उसका शिक्षण का क्या, उसका आरोग्य का क्या। 300 रुपया जो भत्ता मिलता है, तो 300 में तो इसका फैमिली नहीं चलेगा। तो सरकार को अपना शिक्षण भी देखना चाहिए कि एक व्यक्ति घर का जो पकड़ाता है, उसके पीछे 10 लोग होते हैं खाने पीने वाले। अभी 10 लोग का नुकसान एक आदमी भोग रहा है। चलो, हम तो सरकार से विनती करते हैं कि जल्द से जल्द छुट्टी हो, इसी प्रार्थना करते हैं और सरकार से विनती भी करते हैं। मेरा नाम छगन बामनिया और मैं देव जिले से बिलोंग करता हूँ। और हाल ही में हम यहाँ पे जो हमारे माछीमार है पाकिस्तान की जेल में, उसको सुधारने के लिए हम कल संघवी सर को मिले थे और हमने एक डेलीगेशन के साथ गए थे, साथ में जाके उसको छुड़ाने के लिए। और 15 अगस्त आ रही है, आजादी के दिन के बाद में इसको बातचीत करने के बाद हमको साहब ने आश्वस्त किया है कि हम लोग से जो भी हो सकता है इसको रिहा करने के लिए हम कोशिश करेंगे। और हमको पूरा विश्वास है कि सर हमारी बात सुनने के बाद केंद्र सरकार और विदेश मंत्रालय में जाके हमारी ओर से रिक्वेस्ट करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। गुजरात के 144 ज्यादातर गिर सोमनाथ से है ज्यादातर, और पोरबंदर जिले से है और ओखा के भी है, ज्यादातर गिर सोमनाथ से। बड़ी बात की हम उसके बीच में रहते तो हम ही समझ सकते हैं, क्योंकि फक्त एक जो कमाना वाला है, जो मेन मुखिया जो पकड़ा जाते, बाद में उसका जो भरण पोषण का समस्या, उसका बच्चे का पढ़ने का, रोजी रोटी का, खाने पीने का, उसके जो बूढ़े माँ बाप घर में है उसको हेल्थ का प्रॉब्लम रहता है, तो उसको सारवार के लिए हॉस्पिटल में ले जाने का बहुत से प्रॉब्लम रहते हैं। और इतने लंबे समय तक रहने से पूरा परिवार बिखर जाता है, एजुकेशन नहीं मिलता। जो उसकी जो घरवाली है वो मजदूरी करके भरण पोषण करती है, और उसकी जो और पाकिस्तान की जेल में लॉन्ग टाइम से रहने के बाद उसकी जो शारीरिक है, जो बॉडी पूरा खलास हो जाता है। वो वापस आएंगे ना तो, लेकिन काम करने लायक नहीं रहेंगे, ऐसी बॉडी हो जाएगी। क्योंकि वहाँ पे तो समझ सकते हैं कि जेल में तो खाने पीने की दिक्कत, बहुत दिक्कत रहती है, पानी की दिक्कत रहती है, स्किन का प्रॉब्लम रहता है, और ज्यादातर लोगों को टीबी का प्रॉब्लम ज्यादा रहता है। इसमें से कुछ लोगों को गंभीर बीमारी थी, लेकिन यहाँ पे आके थोड़ा सा सारवार होने से ठीक हो गए। अभी तक वहाँ से मैसेज है ऐसा कि कोई 5-6 आदमी को अभी गंभीर बीमारी है, लेकिन हमारे पास ऑफिशियली कोई रिपोर्ट नहीं है।